એ ઢીલ દે ઢીલ દે ઢીલ દે, લપેટ લપેટ લપેટ, બસ આવી બૂમો પાડવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, કારણ કે ઉત્તરાયણ આવી ગઈ છે. અને ગુજરાતીઓ માટે ઉત્તરાયણ એટલે આમ બેસ્ટ આમ તહેવાર એવો કે 2 દિવસ ધાબા ઉપરથી ઉતરીએ જ નહીં. અને ઉત્તરાયણ માટે શું જોઈએ આપણને? મસ્ત પતંગ જોઈએ અને મસ્ત દોરી જોઈએ. દોરી એટલે માંજો જોઈએ. જો મસ્ત માંજો હોય તો બહુ બધા પતંગો કાપીએ આપણે, પરંતુ એ માંજો જે હાથથી ઘસતા હોય છે, કે જે બનાવવામાં આવતો હોય છે, આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ વધારે કાચ નાખજો, એકદમ મજબૂત માંજો બનાવજો, મારો પતંગ કપાવો જ ના જોઈએ. તો એ માંજો કઈ રીતના બનતો છે, એમાં કઈ વસ્તુઓ ઉપયોગ થાય છે, અને આ જે કારીગરો છે, આપણે રસ્તા ઉપરથી નીકળીએ એટલે આપણે જોતા હોઈએ કે ઘસતા હોય માંજો, તો એ કઈ રીતના ઘસાય છે, એની કઈ ટ્રીક હોય છે, કે પછી એ ફિરકી બનાવતા પહેલાં એ માંજાને કઈ રીતના કરવામાં આવે છે કામ, એ બધું જાણવું છે. તો અહીંયા આવ્યા છીએ તો જાણીશું કે માંજો કલર કરવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે, એને બનાવવાની કેવી ટ્રીક હોય છે, એ બધું જાણવું છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ સલીમભાઈ છે. સલીમભાઈ, આ તમે રંગ બનાવો છો જે માંજામાં લાગે, તો એ રંગ કઈ રીતના બનતો હોય? એમાં સાબુદાણું આવે, સરેસ આવે, કાચ આવે, ફેવિકોલ આવે, બધી જાતના મતલબ વેરાયટી નાખીને કલર બનાવીએ છીએ. એમાં દોરીની ધાર બી સારી આવે. હવે આપણે એવું બનાવીએ છીએ કે કોઈ બીજા પક્ષી લોકો બી હેરાન ના થાય, આવી ધાતુ વસ્તુ અંદર નાખતા નથી. એટલે જે સામાન્ય જીવનમાં ઉપયોગ થાય એવી વસ્તુથી રંગ બનાવો. મીડિયમ ક્વોલિટીની રાખવાની, બહુ ધારવાળી બી નહીં, તાકે કોઈ બીજાને તકલીફ ના પડે. એ કાચો રંગ ક્યાંથી લાવો છો ને એ રંગ કયો હોય છે? કલર તો અહીંયા જમાલપુર છીપાવાડ છે ને, ત્યાં મળે છે. ત્યાંથી અમે લોકો લાવીએ છીએ. ત્યાં ભાવ બી રિઝનેબલ હોય. દુકાનદારથી લઈએ તો આપણને પૈસા થોડા વધારે આપવા પડે. અહીંયા સાબુદાણા નાખીએ એટલે એનાથી શું? એનાથી દોરી ઉપર કાચ ચડે ને ચિકાસ હોય ને, એ ચિકાસથી કાચ એના ઉપર ચોંટે. તમે રંગ બતાવશો અમને આમ? જો આ સાબુદાણો છે, આ આપણે અંદર નાખીએ છીએ તો દોરી એકદમ ચીકણી થાય. ને આની અંદર કાચ આવે. અચ્છા, એટલે રંગમાં પણ કાચ નાખો? હા, આ જે કાચ છે, આ જે કાચ આવે છે, આ કાચ આવે. એને પછી મલાઈ નાખવાનું તો બધું મિક્સ થઈ જાય. અંદર બધું અંદર સરેસ ને બધું નાખેલું જોઈએ. પછી ડાયરેક્ટ દોરી રંગી નાખવાની. એમાં કોઈ બી જાતની વસ્તુ નાખતા નથી અમે. પબ્લિક લઈને આવે પછી અમે લોકો નાખતા નથી, કેમ કે બીજા પક્ષી લોકો હેરાન થાય, વાહનવાળા ઉપર દોરી જાય તો ગળા ઉપર તકલીફ પડે. એના હિસાબે અમે અમારી રીતથી દોરી રંગી છે. ગ્રાહક ભલે કે અમે આ નાખો આ નાખો, અમે નહીં નાખતા. એવી રીતે દોરી રાખવાની. क्या नाम है आपका? इरशाद भाई। अच्छा इरशाद भाई, आप यहाँ गुजरात से हो या बाहर से? हम दिल्ली से आते हैं। अच्छा, दिल्ली से आते हो. अच्छा, तो ये कितने आप सब अलग अलग कारीगरों को आप लेके आते हो या अलग अलग आते हैं? लेके तो हम ही आते हैं, लेकिन को 1 साल पहले एडवांस देना पड़ता है यहाँ पर काम पे आने के लिए। अच्छा अभी यहाँ से जाएंगे ये 14 तारीख में, उत्तरायण पूरी होने के बाद, तो इनको एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से बुक करवा के? 2-4-5 हज़ार रुपये एडवांस देने पड़ते हैं हर बरस आने वाले टाइम के अच्छा, लिए। तो ये कितने कारीगर आप लेके आते हो? अभी लगभग 10 आदमी है हमारे पास काम करने वाले। सब कहाँ से आते हैं? कोई कानपुर के हैं, कोई दिल्ली के हैं, कोई लखनऊ के हैं, और झारखंड से भी हैं, कलकत्ते के भी हैं। आप भी यही काम करते हो दिल्ली में? 12 महीने यही काम है हमारा। मांझा घिसने का? हाँ जी। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? मतलब ये हम हाथ से, अभी तो क्या है मशीन आ गया, वो चक्री आ गई है, तो हाथ से ये मांझा घिसना बहुत पुराना है. पहले हाथ से ही मांझा घिसे जाते थे, कलर जो होता है वो, तो वो प्रोसेस कैसे होता है? रियल काम तो क्या है इसका, हाथ से घिसने का ही है। जो हाथ से घिसने का ना, वो रियल काम है। अभी बाद में लोगों ने वो डोगला निकाला है, वो इसकी नकल है काम की। उसमें तो खाली पानी डाल देंगे और कुछ वो होता है केमिकल वगैरह, लेकिन इसके अंदर खाली चावल होते हैं पक्के हुए, बारीक बारीक चावल आते हैं, और कांच मिलाते हैं, बहुत बारीक बारीक पाउडर होता है, वो हाथ में लगता नहीं है। बस खाली क्या धार आती है ना मांझे में, तो थोड़ी उंगली कटती है। अब ये 12 महीने जब इंसान यही काम करेगा तो थोड़ी बहुत उंगली तो कटेगी। अच्छा, तो ये चावल होते हैं और साबुन होता है और कांच होता है, वो कांच कौन सा कांच होता है? कांच बहुत बारीक होता है, जैसे गिलास हो, कप पिरच हो। उसका
पाउडर बनाते हैं? बहुत बारीक करके उसको छान लेते हैं बारीक कपड़े में। बहुत बारीक बारीक होता है, जैसे नमक होता है ना, ऐसे उसको हाथ से हम मिलाएंगे तो हाथ में लगेगा नहीं। तो वैसे मजबूत कैसे होता है ये धागा? नॉर्मल होता है, वो रंगने के बाद इतना मजबूत? धागा मजबूत होता है, पतंग का ही धागा है ना, वो थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कलप चढ़ाने के हिसाब से थोड़ा और ये सख्त हो जाता है, काट हो जाता है, फिर इसमें पतंग काटता है फिर ये वो कांच की वजह से या फिर धागे की वजह से? कांच की वजह से। अच्छा, वो कलर कौन से यूज करते हैं इसमें? ज़्यादातर गुलाबी कलर होता है, कच्चे कलर होते हैं, मतलब वो क्या होता है? पानी के मतलब कलर होते हैं। कहाँ से होता है? कलर तो यहीं से आता है सब, ये आम दुकानों पे से ले लेते हैं। वो अलग कलर नहीं होता है कोई? नहीं, अलग नहीं है, पानी वाले कलर अलग होते हैं और जो पक्के कलर हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते हैं, इसमें कच्चा कलर होते हैं पानी के। अच्छा, कितना टाइम ये घिसने में लगता है एक मतलब डोरी के हिसाब से? नहीं, जैसे आदमी ज़्यादा है ना तो लगभग 5000 बार घिसेंगे तो 10 मिनट में घिस जाएगा। अच्छा, डोरी लगाने वाला अलग है, डोरी भरने वाला अलग है, डोरी को घिसने वाला अलग है। लंबा भी है तो? लंबाई भी ज़्यादा है, लगभग 25-26 मीटर की लंबाई है। धागे की जो लंबाई रखनी पड़ती है वो अनलिमिट होती है, जितना ज़्यादा लंबा होता है उसमें काम ज़्यादा खींचेगा, रनिंग जो है वो बढ़ जाती है। और ये कितने टाइम से आप कर रहे हो? लगभग 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और यही अहमदाबाद ही आते हो या कहीं और भी जाते यहाँ से सिवा बीकानेर में भी काम होता है, अखा तीज का त्यौहार होता है बीकानेर में, होली के 40 दिन बाद होता है। जैसे होली फूकेगी उसके 40 दिन बाद वहाँ त्यौहार होता है अखा तीज का, तो हम लोग वहाँ पर भी जाते हैं। हो? तो ये मांझा और वो सब लोग आपको देते हैं, उसके बाद आप रंगते हो ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से ग्राहक आते हैं पतंग चढ़ाने वाले, वो टेलर लेके आते हैं 5000 वारो, 2500 वारो, 2000 वारो, वो लेके आते हैं, हम उनसे मजदूरी ले लेते हैं, फिरकी लाएंगे और टेलर लाएंगे, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, अभी तो काम कम है, जल्दी हो जाता है। फिर अभी ये संडे आएगा, उसमें थोड़ी वेटिंग हो जाएगी, 2 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे लग जाएँ, काम के हिसाब से, जैसे काम ज़्यादा होता तो टाइम लग जाता। आते कब हो यहाँ पे काम करने के लिए? हम यहाँ पे 11वें महीने में आ जाते हैं, 11, 12 पहला और 11वें महीने के लगभग 20-22 तारीख में। कम टाइम के लिए आते हैं, फैमिली भी आती है ना साथ में, अच्छा, फैमिली को भी यहाँ पे लेके आते बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे। हैं? तो दूसरे ये जितने भी कारीगर है वो सब अपनी फैमिली को सब अकेले आते हैं, जो काम करवाने वाला होता है ना वो फैमिली को लाने पड़ते हैं, कपड़े धोने, खाना खाना। कपड़े तो चलो बाहर धुलवा लेते हैं, लेकिन खाने का जो है वो हम घर में ही बनवाते हैं। तो ये कारीगर आपके साथ ही रहते हैं? साथ में ही खाते हैं, एक रूम ले रखा है इनके लिए, अलग रहते हैं वो लोग, मेरी फैमिली अलग है तो वहाँ रहते हैं, लेकिन खाने का जो है वो हमारे जिम्मे है, हम अपने घर में ही तैयार करते हैं खाना। आपने इन लोगों को ढूंढा कैसे कि ये लोग हाथ से मांझते हैं? अलग अलग शहर से आए सब? जैसे लोग यहाँ काम करने आते हैं ना, तो कारीगर अच्छा है तो उसको 2-5 हज़ार दे दिए, वो कायम के लिए बन जाता है, क्योंकि लगभग 30 साल हो गए हमें। 30 साल में क्या है, पहचान हो गई है कारीगरों की एक दूसरे से। आते तो दूर से हैं, अनेक जगह से आते हैं, कोई कानपुर के हैं, कोई बीकानेर के हैं, कोई कलकत्ता से? हाँ, लेकिन ये थोड़े बहुत पैसे लेके जाते हैं। अब इनको यहाँ काम की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में यूपी में क्या है, सूरज कम निकलता है। अब मान लो वहाँ 500 रुपये कमा रहे हैं आदमी, तो घर छोड़ के आएगा, उसको दुगनी रकम मिलेगी, तो घर छोड़ के आना भी अच्छा लगता है। अब 15,000 रुपये कमा रहे हैं, उसको यहाँ 30,000 रुपये मिलेंगे, तो आदमी छोड़ता है, चलो सीजन है कर लो, बस ये है। इनका क्या होता है रोज का? इनका हम लिमिट तय कर लेते हैं, जैसे 1.5 महीने के लिए इंसान आया, 30,000 रुपये दे दिए, 35,000 दे लिए, महीने के हिसाब से? दोनों मिलकर नक्की कर लेते हैं सीजन के हिसाब से? सीजन के हिसाब से। अब काम नहीं हो, अब ये हमारा नसीब है, काम ज़्यादा हो ये भी हमारा नसीब है। ये तो बेचारे आते हैं काम करके चले जाते हैं, 14 तारीख में वापस जाएंगे, इनको इनके पैसे दे दिए जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। अगर इनको परेशान करेंगे तो आते साल नहीं आएंगे ये, तो इसलिए इनको रखना पड़ता है बहुत मोहब्बत से, क्योंकि आने वाले साल के लिए फिर आएंगे ये। अच्छा, इसके अलावा आप कोई काम करते हो दिल्ली में? नहीं, बस यही काम सीखा। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। अच्छा पप्पू भाई, ये मसाला कैसे बनाते हो ये मांझे के लिए? चावल पहले लाते हैं, फिर कांच, फिर वो जो हम बोलते हैं ना कि अच्छे से कांच डालना मजबूत तो वो कांच होता क्या, मतलब कौन सा कांच होता है? ये कांच है, ये हाँ बारीक पाउडर है कांच। कांच का पाउडर बनाते हैं? हाँ बारीक पाउडर है कांच का, और कलर भी है, सुहागा है, साबुन है। अच्छा, साबुन भी है? हाँ साबुन भी है, लिसी करने के लिए। 3 होते हैं चावल? चावल, कांच, चावल और कांच।
अच्छा, आप ये कितने टाइम से करते हो? कम से कम 30-40 साल हो रहे हैं। 30-40 साल। और आप कहाँ से हो? हम कानपुर। कानपुर से हो। अच्छा, तो ये जब मकर संक्रांति होती है तभी आते हो आप कि यहीं पे रहते हो? हाँ, जब भी आते हैं, ये गुजरात का सीजन होता है जब आते हैं। तो ये सीखे कहाँ से? ये कहाँ से सीखे? कानपुर से। कानपुर से। हम्म। वहाँ पे मांझे होते हैं, मतलब बनाते हो? हाँ, 12 मास काम करते हैं। मेरे पापा भी यही काम करते थे। मांझे बनाते हाँ, हैं। आप परसों से यही करते हैं ना सब? परसों से। और 2 महीने के बाद चले जाते हो यहाँ से? हाँ, 2 महीने के बाद चले जाएंगे, फिर ये 1 हफ्ते के बाद काम चालू कर देंगे ये। वहाँ कानपुर में करते हैं, फिर 2 महीने के लिए यहाँ पे? हाँ, 2 महीने के लिए आते हैं। और आपको यही आता है या फिर आप मांझ भी लेते हो? मांस पूरा काम। अच्छा, पूरा आता है प्रोसेस। अच्छा, तो इससे हाथ में कुछ होता है? हाथ कट जाते हैं। ठीक है। हाँ। आज के बाद? हम्म। तो बरसों से ये करते हो तो हाथ में कुछ ज़्यादा खराब नहीं होता स्किन और वो? ये काम है, काम तो करना ही है, इसी वजह से सब हैबिट हो जाती है। हाँ, किसी टाइम खाना खाने आदत पड़ जाती है, खाना खाने में कभी दिक्कत हो तो चम्मच से खा लेते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब पूरा टाइम ये कांच से काम करते सब पूरा कटा है। हैं। आपको ये मालूम है कि ये हाथ से डोरी घिसने का काम कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, ऐसा कुछ इसका कुछ हिस्ट्री है? ये तो लगभग हम यहाँ पर आए थे 84 में। पहले हम दिल्ली में काम करते थे, तो पंजाब से माल जाता था। पंजाब दिल्ली से काम होके पंजाब माल जाता था। और जब से वो सन 84 में झगड़ा हुआ था, इंदिरा मरी थी, तो उसके बाद हम छोटे छोटे थे, हमारे पापा आए थे यहाँ पे, वो ऑफ हो गया यहाँ पे 92 में। तो फिर हमने लाओ सोचा काम चालू करो। जब हम यहाँ पर आए तो और बहुत लोग पहले से काम करते थे। अब तो लोग पता नहीं कितने पहले आए होंगे, कितना करा होगा, इसका अंदाज़ा नहीं है। मतलब आपका फैमिली बिजनेस है? मेरा, हाँ, मेरे बाप दादा का काम यही है। तो आपने उनसे सीखा है? हाँ, वो जब घर के करने वाले थे तो हमें पता नहीं पड़ा, हमने काम कब सीख लिया। जब बड़े हुए तो कारीगर बन चुके थे। हाँ। अच्छा, और इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हो? और ये पाउडर जो होता है, आपने बोला कि कांच को वो पाउडर बनाते, तो वो कैसे बनता है? कोई अलग ट्रिक होती है? तो जैसे चक्की होती है ना गेहूँ को पीसने की, ऐसे इसकी मशीन आती है, वो पीसने वाले अलग आते हैं। वो यहाँ एक व्यापारी है दरियापुर में, गोविंद काका नाम के, वो सबको ये कांच सप्लाई करते हैं, बहुत बारीक होता है। वहाँ चक्की में पीसता है, ये सब डोरी वालों को सप्लाई करते हैं सब अहमदाबाद में। अच्छा, मतलब उसकी चक्की अलग होती है? उसकी पीसने की चक्की अलग है, वो पीस के हमें ला के देते हैं। ये लगभग 30 रुपये किलो आता है पिसा हुआ कांच। फिर रंग लेते हैं हम दुकानों पे, कलर वाली दुकान है, वहाँ कलर मिल जाता है। चावल यहाँ मिल जाते हैं किराने वाले के यहाँ। उसको यहाँ से सामान लिया, आइटम तैयार करा, अब ये हमें देखना है उसमें क्या क्या मिलाना है। जैसे हम कारीगर हैं तो हमें मालूम है क्या क्या मिलाना है। इसका कोई मार्जिन होता है कि इतनी डोरी रंगनी है तो इतना पाउडर डालना है या इतने चावल लेने हैं? इसका कोई मार्जिन होता है? उसका अंदाज़ा एक कारीगर का ही होता है। जैसे मान लो 10 टेलर का वो मसाला बनाया, वो मसाला बना के उसमें कितना कलर डालना है, कितना, उसमें एक सुहागा आता है जो सुनार के यहाँ काम में आता है, जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। एक ऐसी वो पत्थर की डली आती है, उसको ऐसे घिस के मिलाते हैं तो डोरी कड़क हो जाती है। ज़्यादा कड़क होती है तो उसमें साबुन पका के मिलाना पड़ता है लीसी करने के लिए। तो ज़्यादा लीसी हो गई तो सुहागा मिलाएंगे, और ज़्यादा कड़क हो जाती है तो लोग बोलते हैं लीसी कर देना अंकल, लीसी कर देना। तो उसमें थोड़ा साबुन पका के ना मिला देते हैं लुद्दी में। अच्छा, उसको सुहागा बोलते हैं? हाँ, अच्छा, तो वो सुहागा कैसे बनता है? सुहागा एक पत्थर का आइटम है, सुनार के काम में आता है। मिसाल है ना सोने पे सुहागा, वो सुहागा हमारे यहाँ यूज़ करा जाता है। और दूसरी इसब गोल होता है, इसब गोल की भूसी आती है वाइट वाली, जो जाजुर हो जाते हैं बच्चों को, उसमें दही में मिला के खिलानी पड़ती है। वो इसब गोल की भूसी आती है लुद्दी को टाइट करने के लिए। एक जगह सिमट जाती है, नहीं तो गिर जाती है, जैसे बिखर जाती है, तो उसको मिलाने के लिए इसब गोल की भूसी आती है। तो उसमें थोड़ा सा क्या लेस पैदा हो जाता है, चौंट जाती है वो सब उसको लुद्दी को अपनी कंट्रोल में कर लेता है इसब गोल की भूसी। थोड़ी डोरी भी कड़क होती है उससे। और वो साबुन होता है, वो कैसे बनाते हो, पकाते हो? साबुन को काट के, वो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, बगैर उसका लेबल वाला जो पुराना साबुन है, कपड़े धोने का पुराना साबुन आता है, उसको काट के पका के और उसको एकदम मुलायम कर लेते हैं। अच्छा, मतलब वो उसको काट के फिर उसको पानी में पकाते हैं कि ऐसे? गर्म पानी में पका के ना उसको मुलायम कर लेते हैं,
फिर उसकी लिमिट के हिसाब से कि कितना मिलाना है वो कारीगर मिलाता। मतलब हम जो रोजिंदा जीवन में यूज करते हैं वही चीज मिला के आप वो कलर घिसते हैं। साबुन जो कपड़े धोने पहले औरतें कपड़े धोती थी ना, बगैर पैकिंग वाला साबुन, डंडा साफ होता है और चकोर पट्टी होती है, वो उसको पका के काट के मिला के रख लेते हैं। अच्छा, मतलब कांच का पाउडर होता है, इसबगुल होता है, चावल होते हैं, साबुन का वो पेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है? सुहागा सुहागा होता है। सोनार की दुकान पे सुनार की दुकान पे होता है ये सब। कड़क आ जाती है, अच्छी होती और है। साबुन से नर्म करने के लिए। से लीसी करने के लिए हम बच्चे बोलते हैं हमें लीसी चाहिए, उंगली नहीं कटे, तो थोड़ा साबुन ज़्यादा डाल देते हैं, एकदम लीसी हो जाती है। ये कारीगर की कला है कि लीसी करनी है क्या मिलाना है और कड़क करनी है तो क्या मिलाना है। ये कारीगर काम सीखा हुआ ना तो वो बेहतर जानता है। ग्राहक तो खाली आके बोला कि एकदम कड़क चाहिए, दूसरा ग्राहक कांच डाल के देना, कट जानी चाहिए। हाँ, और दूसरा ग्राहक आता है कि हमें तो एकदम लीसी चाहिए। वो कारीगर जानता है कि लीसी कैसे होगी और कड़क कैसे होगी, वो कारीगर के हाथ में।